الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفۃ عین آمین یا رب العالمین۔ اسرت القرآن کے اس سیشن میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور صحت اور موقع سے عنایت فرمائے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور بھی بہتر انسان، بہتر مسلمان بنا سکیں اور جنت حاصل کرنے کی دوڑ میں شرکت کر سکیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچا کر اور دنیا کے فتنوں سے بچانے کا علم حاصل کریں۔ اس پر اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان محفلوں سے اور ان چیزوں سے ہمیں جوڑے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آج کیونکہ ٹیوزڈے ہے تو ہمارا سیشن آج ازواج مطہرات پر ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر ہم انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں یوزولی، بٹ ہمارا کیونکہ ورک شاپ چل رہا ہے نفس کے تعلق سے، تو پھر ہم ورک شاپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سیشن کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں ہماری بہت ہی پیاری ساتھی شاہجہاں انشاءاللہ۔ جی شاہجہاں السلام انمیوٹ کر علیکم لیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فجر آیت نمبر 22 to 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ اور آپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف باندھے ہوں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اس دن آدمی نصیحت حاصل کرے گا، اور تب نصیحت اسے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے نیک عمل پہلے بھیج دیا ہوتا۔ پس اس دن کوئی شخص اللہ کے عذاب سے جیسا عذاب نہیں دے گا، اور کوئی شخص اس کے باندھنے جیسا نہیں باندھے گا۔ اے ایمان کی وجہ سے مطمئن جان، تو اپنے رب کے پاس لوٹ چل، در حالانکہ تو اس سے راضی ہے، اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بس تو میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شاہجہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور بھی اضافہ فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تمام خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں خیر لکھ دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا اگلا سیشن ہوتا ہے ہمارے ازواج مطہرات کے تعلق سے پڑھنے، تو انشاءاللہ ہمارے سامنے ہے ہماری ٹیچر اور بہت پیاری ساتھی روزی جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما
सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। उसरातुल कुरान 2020 नाउ प्रेजेंटिंग उम्महातुल मोमिनीन। इसमें हम लोग रसूल सल्लल्लाहु के पाक अज़वाज मुतहरा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले कुछ दिन से पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोग खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में इन शॉर्ट पढ़ लिया है। पढ़ते हुए हम देखें कि हकीकत में खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हमारे लिए एक रोल मॉडल, बिल्कुल हमारे लिए एक रोल मॉडल। क्या है क्वालिटी उनमें तो बेशुमार है, बहुत सारे है। हम लोग अपना हिसाब से कुछ देखते हैं। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा दौलतमंद थी, काबिल बेटी थी, इस्लामी सोसाइटी में बहुत कंट्रीब्यूशन रखे हैं, अपना बाप का कारोबार को संभाले, रोल मॉडल, अच्छा माँ बने हैं, ईमान के साथ जिए हैं, जब इस्लाम का शुरुआती दौर में अपना कंट्रीब्यूशन रखे हैं, फर्स्ट ईमान लाने वाली हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत को विदाउट एनी क्वेश्चन एक्सेप्ट किए थे, सपोर्टिव वाइफ थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हुए थे। उनमें बेशुमार काउंटलेस क्वालिटीज हम पाते हैं जो एक रोल मॉडल में हमारा तलाश होते हैं। तो हमारे लिए खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक रोल मॉडल, कैसे, क्यों नहीं, उन्होंने कामयाब और इज्जतदार बिजनेस वुमेन थी। आज के ज़माने में अगर कोई इसी तरह कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, तो हम उसे अपना आइडियल बना लेते हैं, अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उसके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। उसकी कामयाबी का, सक्सेस का की पॉइंट क्या है, उसकी रहन सहन कैसा है, हर चीज़ें उनके बारे में हर चीज़ें जानने का और फॉलो करने का कोशिश करते हैं। तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक सक्सेसफुल मर्चेंट बाप के घर में पैदा हुई थी और अपनी बाप का ये जो बिजनेस स्किल वो इनहेरिट की थी। बाप का इंतकाल के बाद वो बिजनेस उन्होंने बर्बाद होने नहीं दिया, बल्कि अभी भी स्लाइड नंबर 7 में रखिए, परवीन स्लाइड नंबर 7 में ही रखिए। हाँ, तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी बाप का इंतकाल के बाद उनका बिजनेस को बर्बाद होने नहीं दिया, बल्कि वो बिजनेस अपना हाथ में ले लिया और मक्का से सीरिया, यमन में अपनी बाप का कारोबार चालू रखा। कैसे, एक औरत है, कैसे ये बिजनेस चालू रखा? उन्होंने ऑनेस्ट, करेजियस, इंटेलिजेंट, एफिशिएंट लोगों को हायर किया करती थी, अपॉइंट करती थी, जो अपना बिजनेस में नौकरी दिलाती थी, जो बहुत अमानतदार है, हिम्मत वाला है, अच्छे किरदार का है, इसी तरह लोगों को अपना बिजनेस में नौकरी देती थी। तो ये जो अपना बिजनेस में जो लोगों का रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट करने के लिए भी बहुत ही एबिलिटी का जरूरत होता है और वो एबिलिटी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा में थी। हमने देखा जो उनका गुलाम माइसेरा को जो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजे थे, वो माइसेरा भी बहुत ही ऑनेस्ट थे, अच्छे किरदार का थे। इसीलिए ही तो बिजनेस में वापस आने के बाद रसूलुल्लाह का एक एक खूबी का बयान माइसेरा ने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास किए थे। तो प्रैक्टिकली कि उन्होंने, उनका ये फोरसाइट था, ये रिक्रूटमेंट किन्हें किया जाए, ये फोरसाइट खदीजा रजी अल्लाह अन्हा में थी, जो एक रोल मॉडल में हम तलाश करते हैं। अगर माइसेरा अच्छे किरदार का ना होता तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खूबियां अपना मालकिन के पास बयान नहीं करती। तो इसी तरह उन्होंने अपना बिजनेस में उनका रेपुटेशन, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का रेपुटेशन भी बहुत ही ज्यादा हुआ था उसी टाइम। रेपुटेशन एक इंसान को रोल मॉडल बनाते हैं और रेपुटेशन यूं ही नहीं मिलता, यूं ही नहीं हो जाता। उनकी जो बिजनेस का स्ट्रेटेजी, उसी की वजह से ये रेपुटेशन मिले थे। बिजनेस यानी प्रोडक्ट, उन्होंने अपना प्रोडक्ट, अपना सामान, हर सामान का जो क्वालिटी, वो क्वालिटी कंट्रोल किया करती थी। हमेशा अच्छे क्वालिटी का सामान ही उन्होंने सामान, उसी का बिजनेस किया करती थी। हम भी जब मार्केट में कुछ चीज परचेज करने जाते हैं, हम क्या चाहते हैं कि प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, इट्स ओके, बट क्वालिटी अच्छा हो।
हम हिमालय का प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्वालिटी अच्छा है। तो इसी तरह खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना जो सामान, अपना चीजें जो हाई क्वालिटी का रखा करती थी और फेयर डीलिंग किया करती थी, सिर्फ कस्टमर के साथ ही नहीं, जो अपना एम्प्लॉय उन लोगों के साथ भी फेयर डीलिंग किया करती थी। जो एम्प्लॉय जो अच्छा पेमेंट का हकदार है, डिजर्व करता है, उसे उस हिसाब से ही पेमेंट किया करती थी, उसमें कंजूसी नहीं करती थी। तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का रेपुटेशन की वजह से उन्हें कितना लक़ब भी मिला था, हाँ, कि अमीरात अल कुरैश, यानी कुरैश का प्रिंसेस, अल ताहिरा द प्योर वन, हाँ, खदीजातुल कुबरा यानी द ग्रेट। तो ये सारे लक़ब भी उनको मिला था। एक लक़ब मिलना, एक टाइटल मिलना कितना इज्जत की बात होती है। मेल डोमिनेटेड जमाना में खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने बिजनेस किया, और बिजनेस करते हुए खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कभी अपनी मॉडेस्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पूरा डिग्निटी के साथ उन्होंने बिजनेस किया। इवन आज भी जब हमारा बेटियों, गर्ल चाइल्ड या औरत जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो हम 20 दफा सोचते हैं कि हम पीछे खींचते हैं। इस पॉइंट पर हमें खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से लेसन लेना है, सबक लेना है। औरत हूँ, जरूर लिमिटेशन है। एक औरत के लिए, हर एक के लिए, पर्टिकुलर औरत के लिए एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, हद है। उस बाउंड्री के अंडर रह के हम भी कामयाब हो सकते हैं। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हुआ था। ऐसा नहीं कि हम औरत है इसीलिए अपना तमाम नॉलेज, अपना तमाम एबिलिटी लेके हम बैठे रहे, क्योंकि ये दुनिया में मर्द औरत है। दुनिया कभी, देखो, दुनिया कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मर्द ही मर्द है या दुनिया सिर्फ औरत के लिए है, ऐसा तो नहीं होगा। और मर्द और औरत एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, ना ही तो कॉम्पिटिटर, बल्कि एक दूसरे का ताकत, एक दूसरे का स्ट्रेंथ बन सकते हैं। और ये खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने बना के दिखाया, ये करके दिखाया। उन्होंने जम के डिग्निटी के साथ बिजनेस किया, बट मॉडेस्टी के साथ। उन्होंने खुद बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस ट्रिप में खुद नहीं जाती, एक औरत के लिए सफर मुश्किल है, सो उन्होंने अवॉइड करती थी। अपना जगह में अच्छा पेमेंट देके अमानतदार, आमीन, सादिक ऐसा इंसान को उन्होंने हायर किया करती थी, अपना बिजनेस में जॉब दिलाती थी। तो ये हमें खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से सीखने का है, और इसी चीज का तलाश भी हमें रोल मॉडल में होता है। फिर खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 2 दफा विडो हो चुकी थी, 2 दफा उन्होंने विडो हुई थी। लेकिन और विडो होने के बाद उस टाइम ये बहुत ही कॉमन था कि फिर से शादी करे। तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास भी बहुत मैरिज प्रपोजल आए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम शादी से रुख फेर लिया था। शादी ऐसा किसी से होना चाहिए जो कि दुनियादारी में भी वो दुनियादारी में भी काम आए, दुनियादारी में भी वो आगे बढ़ाए, फिर अखरात के लिए भी सही गाइड करे। जब गिरे तो पकड़ कर उठाए, जब भूल जाए तो याद दिला दे। जब जो अल्लाह के राह में चलने का साथी हो, जो साथी जन्नत के तरफ गाइड करे, जिसका किरदार आला हो, तो इसी तरह इंसान से ही शादी करना चाहिए। तो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा किरदार के बारे में सुनी थी। फिर जब बिजनेस के लिए हायर किया, हाँ, तो उनका अच्छाई का एक्सपीरियंस भी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का हो गया। फिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ मैरिज प्रपोजल भेजा। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने ये प्रपोजल भेजी थी। तो यहाँ भी उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनका करेज, उनका अपने बारे में डिसीजन लेने का जो एबिलिटी, ये हमें नजर आते हैं। खुद को पहचानना है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा चाहना, मैं जो चाहती हूँ वो किस हद तक सही है, ये जो डिसाइड करना, ये फैसला लेना, ये भी बहुत ही काबिलियत का बात होती है, जो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा में भी पाई जाती है। तो उन्होंने, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो कुरैश का, मक्का का कितने सारे सरदारों या जो अमीर रिच पर्सन मैरिज प्रपोजल लाए थे, उन लोगों को रिफ्यूज किया, बट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को अपने तरफ से प्रपोजल भेजा। क्यों? जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, हैं, तब तक वेल एस्टेब्लिश्ड भी नहीं थे, इतना प्रोफेशनल 25 इयर्स का एक यंग पर्सन थे, तो उनको क्यों पसंद किया? है क्यों पसंद किया? इसीलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला किरदार के लिए, आला किरदार के लिए, उनका कैरेक्टर के लिए। अगर देखा जाए तो कैरेक्टर एक इंसान का सबसे बड़ा दौलत होता है, सबसे बड़ा कीमती चीज होता है। कैरेक्टर के जरिए इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम में, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक खरीदा हुआ, मार्केट में खरीदा हुआ गुलाम बनकर गए थे वहाँ। सिर्फ अपना अच्छा कैरेक्टर के बुनियाद पर उन्होंने बादशाह बने थे। तो इसीलिए कहावत भी है कि मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस एंड कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग। तो कैरेक्टर इंसान का सबसे बड़ा अहम चीज होता है। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह को जो चूज किया था, पसंद किया था, तो उनका आला किरदार के लिए, अच्छा कैरेक्टर के लिए। तो हम भी जब रिश्ता देखें तो जरूर कैरेक्टर पर फोकस करें, कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करें। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एज डिफरेंस, बल्कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 15 इयर्स एल्डर थी उनसे। तो ये एज डिफरेंस के बावजूद भी ये शादी बहुत सक्सेसफुल हुआ था, बहुत कामयाब हुआ था। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक आइडियल वाइफ बनी थी, क्योंकि ये जो शादी का रिश्ता, ये जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये कैसा होता है? यूजुअली अनरिलेटेड बाय ब्लड, बट ये अनोखा रिश्ता, ये रिश्ता बहुत ही अनोखा। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, इज्जत है, ये सारे बुनियादी चीज होता है, हम उम्र होना नहीं। ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी में हम लोग देखते हैं। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 इयर्स एक साथ जिंदगी बसर की। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ बीबी ही नहीं थी, बल्कि रसूलुल्लाह के लिए एक इंटीमेट फ्रेंड थी, वाइज काउंसिलर थी। और जब रसूलुल्लाह का सबसे जब शदीद मुश्किलात का टाइम, डिफिकल्ट डेज में कंफर्ट दिया, उनको एनकरेज किया। कब? जब जब वही नाजिल हुआ, उसी टाइम रसूलुल्लाह ने बहुत मतलब पजल हो गए थे, तो उन्होंने, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें एनकरेज किया, आप अल्लाह का रसूल हो, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। ये जो सोच ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना हस्बैंड पर डाले थे। रसूलुल्लाह को खुद को पहचानने में उन्होंने मदद की। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। फिर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर ज़ैद बिन हारिसा, वो लोग भी परवरिश पा रहे थे। तो उन्होंने कितना एडजस्टेबल भी थी। तो सिर्फ यही नहीं, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहला मुस्लिम भी, पहली इंसान में सबसे पहले आखिरी नबी का रिसालत को अपनाई थी। जमाने जहालियत के अंधेरा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अंधा नहीं कर पाया। हक जब सामने आया, सच्चाई जब सामने आया, दीन इस्लाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत जब सामने आया, तो उन्होंने पहचान लिया और वो एक्सेप्ट भी कर लिया, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। उन्होंने हक को, दीन इस्लाम को एक्सेप्ट किया। ये भी बहुत ही बड़ा काबिलियत की बात होती है। अगर ये रोल मॉडल नहीं तो फिर और कौन? फिर हक पहचान लिया, इस्लाम अपना ली, तो फिर क्या हो गया? अपना जिम्मेदारी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? ऐसा नहीं। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये जो ईमान अपनाए थे, तो इसका जो ईमान का तकाजा, जो रिक्वायरमेंट, इसे भी फुलफिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होने के लिए खुद को मुश्किलात में डाल दी, अपना माल दौलत इस्लाम की मदद के लिए खर्चा की। इंसान के लिए, देखिए, इंसान के लिए दौलत एक बहुत बड़ा आजमाइश, दौलत होना भी आजमाइश, नहीं होना भी आजमाइश। अल्लाह दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं। और दौलत को हम किस तरह खर्चा कर रहे हैं, वही हमारा आजमाइश। तो इस पॉइंट पर ये पढ़ते हुए हम भी अपना के लिए कुछ डिसाइड कर ले कि हम भी अपना माल दौलत, अपना ज़रूरत
उससे पूरा करेंगे, बल्कि ज़रूरत को भी थोड़ा लिमिटेड करेंगे, फिर वो माल से दूसरे को और अपना सोसाइटी, अपना कम्युनिटी को भी तब भी मदद पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो रोल मॉडल के बारे में स्कॉलर्स ने कुछ पॉइंट्स भी बताते ही हैं हमें, हम देखते हैं। तो यहाँ भी कुछ पॉइंट्स है, हम देखते हैं खादिजा रजी अल्लाह अन्हा से कितना मैच हो रहे हैं। यहाँ टॉप 5 क्वालिटीज ऑफ रोल मॉडल्स ये कुछ स्कॉलर ने ये बताया है। तो क्लियर सेट ऑफ वैल्यूज, हम देखते हैं कि खादिजा रजी अल्लाह अन्हा में ये जो वैल्यूज ये बहुत अच्छा से ही था। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में डिग्निटी के साथ उन्होंने जम के बिजनेस किया। हाँ, उनका बिजनेस कुरैश का तमाम सबका एक साइड में, खदीजा का एक साइड में बराबर था। हाँ, उनका तो उन्होंने जम के बिजनेस किया और अपना डिग्निटी के साथ। हाँ, तो उनका ये जो वैल्यूज ये बहुत अच्छा से ही था। फिर पैशन एंड एबिलिटी ऑफ इंस्पायर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंस्पिरेशन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जब दीन इस्लाम अपनाया तो उनसे इंस्पायर होके उनका कौम का, उनका कबीला का, उनका जान पहचान रिश्तेदार ने भी इस्लाम अपनाए थे। तो ये क्वालिटी भी उनमें है। और कमिटमेंट फुलफिल करती थी, तब ही तो इतना रेपुटेशन, तब ही तो ये लकाब मिला, तब ही तो रोल मॉडल बने हैं। तो कमिटमेंट में भी उन्होंने बिल्कुल ही फुलफिल करने वाली थी। और सेल्फलेसनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, ये भी हम देखे कि उनका घर में अली रजी अल्लाह अन्हु और जैद बिन हरिसा रजी अल्लाह अन्हु भी परवरिश पा रहे थे। हैं, उन्होंने इतना अच्छा से दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेती थी। और एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, ये तो हम देखा रिसालत, जब से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत मिली, हाँ, तब से लेकर मक्की दौर का 10 इयर्स, जबकि मक्की दौर 13 इयर्स, तो 10 इयर्स शिहाब अबी तालिब, उसके बाद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया था। यानी मक्की दौर का जो 10 इयर्स, उनमें जितना ऑब्स्टेकल्स आए थे, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो तमाम मुश्किलात को, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया, उसे ओवरकम करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, हिम्मत जुटाई, उनको आगे बढ़ाया, दीन इस्लाम भी फैलता गया। तो फिर अगर हम ये खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का ये तमाम चीज़ें को हम सम अप करें, निचोड़ निकाले, तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने पहला इंसान जिसने दीन इस्लाम को दीन के हैसियत से अपनाई थी। कैसे? एज अ वे ऑफ वर्शिप नहीं, बल्कि एज अ वे ऑफ लाइफ, कि दीन इस्लाम एक इबादत का तरीका, नमाज पढ़ ली, ऐसा तरीका में नमाज पढ़ ली, हज कर ली, ज़कात, सदका, खैरात, हो गया दीन इस्लाम। ये एक इबादत का एक तौर तरीका, ऐसा नहीं। उन्होंने दीन इस्लाम को वे ऑफ लाइफ, एज अ वे ऑफ लाइफ उन्होंने एक्सेप्ट की थी। जिंदगी का हर पहलू में दीन इस्लाम है, और वो तमाम रिक्वायरमेंट्स, तमाम तकाजा उन्होंने पूरा किया। एज अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का निजाम जो है, उस हिसाब से उन्होंने दीन इस्लाम को एक्सेप्ट की थी। उन्होंने रोल मॉडल, हमेशा के लिए हमारे लिए रोल मॉडल उन्होंने दिखाए, कैसे परफेक्ट वाइफ बन सकते हैं। एक औरत के हैसियत से, एक औरत होते हुए भी घर के अंदर रह के भी किस तरह बिजनेस कारोबार संभाला जा सकता है, कैसे अच्छा माँ बन सकते हैं हम, कैसे अच्छा दीन का फॉलोअर बन सकते हैं, उन्होंने खुद अपना जिंदगी से दिखाया है। इसी तरह उन्होंने हमारे लिए एक आइडियल वुमेन बने हैं। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन मुस्लिम सोसाइटी में, कम्युनिटी में रखे हैं। कैसे? एज अ वेल्दी बिजनेस वुमेन, शी टुक केयर ऑफ हर फादर्स बिजनेस, शी चोज एन ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मैन फॉर हर हस्बैंड, she stood by her husband during early days of his prophethood. इसी तरह उन्होंने not only that, उन्होंने एक जो जनरेशन, उनका जो बच्चे, वो भी नेक और ईमान वाला बच्चे का भी परवरिश किया था। तो इसी तरह खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने हमारे लिए एक रोल मॉडल बने हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में बताए थे कि खदीजा से बेहतर बीवी मुझे नहीं मिला।
جب لوگوں نے مجھے انکار کیا اس نے مجھ پر یقین کی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے ایمان لائی، جب کسی نے مدد نہیں کی اس نے مجھے مدد کی، اس سے مجھے بچے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ نے اس کے لیے میرا دل میں محبت ڈال دیا۔ اللہ has given me love for heart۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صرف یہی بات نہیں بتایا، اور بھی کیا بتایا؟ اور بھی کیا بتایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بولا I was nourished by her love۔ I was nourished by her love۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا کون سا ہسبینڈ اسی طرح بولتے ہیں کہ محبت سے نارشمنٹ ملا ہے؟ اٹس اے ہائی ٹائم ٹو ٹیک اے سیلف ایویلویشن۔ ابھی ہمیں اپنا ایویلویشن کرنے کا ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا ہے، ہمیں محاسبہ کرنے کا ہے کہ ہمارا محبت ہمارا ہسبینڈ کو کتنا نارش کیا، ہمارا محبت ان کا کون سا چیز میں اضافہ کیا، کیا ہمارا محبت سے انہوں نے دنیا کا تمام مشکلات کو حق کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے، ہمارا محبت ان کا ایمان میں تقوی میں اتنا اضافہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں محاسبہ کرنے کا ہے، ہمارا محبت کتنا نارش کیا ہمارا ہسبینڈ کو۔ تو کیا ہمارا ہسبینڈ بلند آواز سے ہمارا محبت کا اچھا بیان کر سکیں گے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہسٹری کا ایک ریمارکیبل وومن، آج بھی ہمارے لیے انسپریشن، اور یہ انسپریشن انہوں نے بات بتائی کہ ایسا منہ میں صرف بول نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنا کاموں سے کر کے دکھایا۔ یہ ان کا جو کوالٹیز تھا انہوں نے مثال بنی ہے۔ یہ مثال کیسے بنی ہے؟ اپنا باتوں سے نہیں بلکہ اپنا عمل سے، اپنا کاموں سے۔ دا بیسٹ رول ماڈل ایور۔ The example she left for mankind remains timeless۔ The best role model ever۔ تو یہ زوم میں موجودہ تمام بہنوں ایک بار ایک آواز ہو کر کہہ دیجئے امہات المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہمارا رول ماڈل ہے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، بہترین جو ہے نا الحمدللہ معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ الحمدللہ ضرور ہم کوشش کریں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفات ہماری زندگی میں اور ہمارے اخلاق میں رونما ہو، اور ہمارے شوہر اور ہمارے فیملیز بھی انہی طرح جو ہے نا روشن جو ہے نا فیملیز ثابت ہوں، انشاءاللہ ہمارے وجود سے مستفید ہوئیں اور ہمارے وجود سے ہم اور لوگ بھی خیر کا باعث بنیں۔ جزاک اللہ خیر روزی بجی اور گیونگ such inspiration